سب سے پہلے اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے 2 لاکھ پاکستانی عوام کو روزگار فراہم ہوا۔ کیڑوں کے خلاف UAV چھڑکنے کا اثر 85 سے 93% تک ہو سکتا ہے۔ نہ صرف ڈرون بلکہ ڈرون آپریٹرز بھی پاکستان کو فراہم کی جانے والی امداد کی اگلی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وبا کے دوران کمپنی کی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ ہم نے آن لائن کاروبار میں توسیع کی۔ پاکستان میں ترقی یافتہ ممالک کا موڈ کاپی کر سکتے ہیں۔ نئے انفراسٹرکچر میں بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو خود کار ڈرائیونگ سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے 5G، بگ ڈیٹا اور AI اسمارٹ شہر۔ وبائی مرض کے دوران لوگوں کا کانٹیکٹ لیس ڈیلیوری کا مطالبہ بڑھ گیا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں 2 معزز مہمان تشریف لائے ہیں، جناب کامران رسول جو وولکس ویگن گروپ چائنا میں کوالٹی مینجمنٹ سے منسلک ہیں، اور جناب محمد عمار جو کہ بیجنگ گلوبل ٹیلنٹ ایکسچینج ایسوسی ایشن میں کمیٹی آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ سب سے پہلے پاک چائنا ریسپانس۔ پاکستانی حکومت نے حال ہی میں سرسبز پاکستان منصوبے کے تحت پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو کے اجرا کی منظوری دی ہے، جو رواں سال اپریل میں منظور شدہ گرین محرک منصوبے کا تسلسل ہے۔ اس اقدام کا مقصد وبا کے بعد مزید ملازمتیں پیدا کرنا اور ملک کے قدرتی وسائل کے تحفظ میں مدد فراہم کرنا ہے۔ فطرت سے غذا چھین کر کھانے کے زمانے کے تجربے سے گزرنے کے بعد چینیوں نے دریافت کیا ہے کہ فطرت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ بہتر اور بھرپور غذا کھا سکتے ہیں اور خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اندرونی منگولیا کے اوردس شہر میں ریت پر قابو پانے والے کارکنوں کی مستقل کوششوں کے ذریعے ماضی کے صحرائی علاقوں میں پودوں کی کوریج کی شرح 80% تک پہنچ گئی۔ اس وقت ہماری خواہش کے باوجود ریت پر قابو پانا مشکل تھا۔ میرے والد کی نسل کے لوگ صحرا میں بوائی کے لیے دور دراز سے بید کے درخت لے کر جاتے تھے۔ 1993 میں علن دلائی نے 6700 ایکڑ ریتلی اراضی کا معاہدہ کیا اور خود کو صحرا پر قابو پانے اور شجرکاری کے لیے وقف کر دیا۔ کئی برسوں کی محنت کے بعد ویران زمین پر بید اور صحرائی پودے اگ اٹھے۔ صحرا پر قابو پانے والے ہر فرد پر قومی صحرا کنٹرول پالیسی کا نفاذ صرف نعرہ ہی نہیں بلکہ ایک محرک قوت کی حیثیت سے زندگی میں ایک حقیقی بہتری ہے۔ حیاتیاتی ماحول کی گورننس کے لیے معاون سہولیات کی تعمیر کے ساتھ ایک علاقہ مختص کریں۔ یہ ماحولیاتی تحفظ میں سرمایہ کاری کے لیے معاشرتی سرمایہ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ایک اقدام ہے۔ مقامی حکومت کے ذریعے شروع کیے گئے جنگلات میں اپ گریڈنگ کے منصوبے نے علان دلائی کو درخت لگانے سے حاصل ہونے والے معاشی فوائد کا بھی احساس دلایا۔ اس وقت گاڑی میں 10 ٹن کارگو ہوتا ہے اور فی ٹن قیمت 400 یوان ہے۔ اگر آپ پانی کو خارج کر دیں تو آپ 600 سے 700 یوان کی خالص آمدن کے ساتھ 3000 یوان سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ اس وقت علان دلائی کے خاندان کی سالانہ خالص آمدنی 10 سال پہلے کے مقابلے میں 5000 یوان سے بڑھ کر اب 50,000 سے 60,000 یوان تک ہو گئی ہے۔ میرا خواب یہ ہے کہ تحفظ کے ذریعے یہ نخلستان اپنی اولاد کے لیے چھوڑوں۔ 13ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران چین صحرائی کنٹرول اور غربت کے خاتمے کے امتزاج پر کاربند رہا اور چینی خصوصیات کے ساتھ صحرائی کنٹرول کے راستے پر گامزن ہوا، جس میں ریت پر قابو پانے اور غربت کے خاتمے کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ حال ہی میں نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن اور وزارت قدرتی وسائل نے مشترکہ طور پر اہم ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور بحالی کا ایک مجموعی منصوبہ 2020-2035 جاری کیا۔ اس میں 9 بڑے منصوبوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں مجموعی طور پر 3 کھرب یوان کی سرمایہ کاری ہے۔ جہاں تک 9 بڑے تحفظاتی ایریا سسٹم کا تعلق ہے تو قومی محفوظ ایریا سسٹم کا انتظام اور تعمیر بنیادی طور پر قومی حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور ماحولیاتی تحفظ جیسے پہلوؤں مثلا نیشنل پارک، قدرتی ذخائر، قدرتی پارک اور اسی طرح سے انجام پائے گا۔ چین میں یہ اتفاق رائے ہے کہ ہمیں ماحول کا ایسا تحفظ کرنا چاہیے
जैसे कि अपनी आंखों की हिफाजत करते हैं। कूड़े की दर्जा बंदी के जरिए सड़कों को खास तौर पर साफ सुथरा रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक अदायगी, कागजी रकम और कम कागज भी कुदरती माहौल की हिफाजत करता है। अगर गैर जरूरी है तो मैं गाड़ी नहीं चलाता। साइकिल माहौल दोस्त है। किसी तहजीब का अरूज या जवाल उसके फितरत से ताल्लुकात से गहरा ताल्लुक रखता है। सब्जाजात तरक्की माज दरख्त लगाने और जंगलात कारी नहीं, बल्कि मुआशरे को ग्रीन लाइफ मॉड कबूल करने और पैदाकारों को सब्जाजात तरक्की से इक्तिसादी फ़वाइद हासिल करने के काबिल बनाना है। तब ये पूरे मुआशरे की सिमत बनेगी। अगस्त की 9 तारीख पाकिस्तान का शजरकारी का फेस्टिवल है और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी हयातियाती माहौल को बेहतर बनाने के लिए 10 अरब दरख्त लगाने की मनसूबाबंदी की है। आपके ख्याल में माहौल की बेहतरी पाकिस्तानी अवाम और माशत के लिए क्या फ़वाइद हैं? सबसे पहले इस मंसूबे को शुरू करने के लिए 2 लाख पाकिस्तानी अवाम को रोजगार फराहम हुआ और इसी तरह अगर माहौल की जो बेहतरी जो हम नेक्स्ट स्टेप में देख लें, जो क्योंकि शजरकारी एक दरख्त लगा के उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतरी आएगी वो तकरीबन 10 से 20 साल का एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो फ्यूचर में जो माहौलियाती बेहतरी का मतलब है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग पूरी दुनिया से पाकिस्तान में काम करने आएंगे, पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ेगा। जब पुराने दौर में चीन ने अपने कुदरती माहौल की कीमत पे सनदी तरक्की हासिल की और आज नए दौर में चीन ने एक तस्वुर पेश किया, यानी साफ पानी और हरी भरी जमीन सोने चांदी के पहाड़ों से भी ज्यादा कीमती है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान जो है वो बजाय इसके कि वही गलतियां और या वही तरीके इस्तेमाल करे जो जिनसे चीन पहले गुजर चुका है, बेहतर यह है कि पाकिस्तान उनसे सीख के वो प्रोसेस लेकर आए जिन पे चाइना अब स्विच कर रहा है। आइए पाक चाइना ट्रेड में हमारी रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता प्रोग्राम के पाक चीन तजारती सेक्शन में हमने इस बात का तज़किरा किया था कि चीन की वजारत ज़राअत और देही तरक्की ने पौधों की निगहदाश्त के लिए पाकिस्तान की वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ को 12 अदद ड्रोन्स अतिया किए थे। टिड्डी दल की वबा पर काबू पाने में ये ड्रोन्स किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं? किरमकुश अद्वियात स्प्रे करने वाले तेज रफ्तार और आला मयार के ड्रोन्स की वसी अक़साम मौजूद हैं, जिससे वक्त, पैसे और मेहनत की बचत हो सकती है। हाथ से किए जाने वाले कामों की कारकर्दगी और लागत मशीनों की मदद से किए जाने वाले कामों से बेहतर नहीं हो सकती। हमने पाकिस्तान में पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला दर्जे की ड्रोन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। ये ड्रोन 1 घंटे में 10 एकड़ रकबे पर स्प्रे कर सकता है, खुसूसन ऐसे इलाके जहां आबी ज़खायर, किसान और जानवरों के बाड़े मौजूद हों। ये ड्रोन कीड़े मार अद्वियात ज्यादा अच्छे तरीके से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी और आबी ज़खायर को नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। काम की कारकर्दगी के लिहाज से ये ड्रोन कमर पर लटका कर स्प्रे करने वाली मशीनों से ज्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। ड्रोन की काम करने की मजमूई कारकर्दगी बहुत तेज है। ये 1 घंटे में 150 से 200 मूव रकबे पर दवा स्प्रे कर सकते हैं। एक ड्रोन एक मरतबा में 8 से 10 मिनट तक परवाज कर सकता है। 6 पंखों वाला एक ड्रोन अपने साथ एक वक्त में 16 लीटर माया ले जा सकता है। इसके जरिए एक दिन में 1000 मूव रकबे पर दवा स्प्रे करना कोई बड़ी बात नहीं। एक कार में बैक वक्त 2 ड्रोन ले जाए जा सकते हैं। इसमें लगे FPU कैमरे की मदद से बराह रास्त सूरत हाल देखी जा सकती है, जो इस ड्रोन की कारकर्दगी और हिफाजत को बेहतर बनाती है। सलामती सबसे मुकद्दम है। इसमें लगा ओमनी डायरेक्शनल रडार 360 डिग्री में सामने आने वाली किसी भी रुकावट का पता चला सकता है। अगर कोई रुकावट सामने आती है तो उससे बचाव और हिफाजत के लिए ड्रोन खुदकार तरीके से अपना काम रोक देगा। कीड़े मार अद्वियात स्प्रे करने वाली रिवायती ज़रूरी मशीनरी के मुकाबले में ड्रोन के फ़वाइद और कारकर्दगी आला है। ये ज़्यादा महफूज और इस्तेमाल में आसान है।
टिड्डियां तेजी से अपना मकाम तब्दील करती हैं। ड्रोन्स आसानी से टिड्डियों की मौजूदगी के मकामात का पता चला सकते हैं और इस हवाले से मालूमात दे सकते हैं। इसके अलावा टिड्डियां मुख्तलिफ ऊंचाई पर उड़ती हैं और ड्रोन की परवाज की ऊंचाई को टिड्डियों की परवाज की ऊंचाई के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। रिवायती ज़रूरी मशीनरी की मदद से इस तरह की कारकर्दगी हासिल नहीं की जा सकती। किरमकुश अद्वियात के छिड़काव के लिए ये ड्रोन्स किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर गंदम के कीड़ों पर काबू पाने के लिए ड्रोन की दवा छिड़कने की कारकर्दगी 85 से 93% तक हो सकती है। हशरात कुछ अद्वियात के इस्तेमाल का एक तस्वुर मौजूद है जिसे मुआशी चौखट भी कहा जाता है। अगरचे ये कीड़ों को 100% खत्म कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लिहाजा हमें तवाजुन के साथ इसका इंतखाब करना चाहिए। दरहकीकत इसकी कसाफत को कंट्रोल करने के लिए आपको कीड़ों को मुकम्मल तौर पर मारने की जरूरत नहीं है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का एक तस्वुर मौजूद है जिसमें कीड़ों के लिए थोड़ा सा खाना महफूज करना होता है। अगर उन्हें मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिया गया तो आने वाली नस्ल आसानी से अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करेगी और उन्हें दोबारा मारना ज्यादा मुश्किल होगा। 95% या 80 से 90% कीड़ों को मारना मुआशी तौर पर ज्यादा माकूल होगा। टूजी सियांग, जो कि सिंगांतन पुलिस इक्विपमेंट्स कंपनी लिमिटेड बीजिंग में चीफ इंजीनियर हैं, ने चाइना इकोनॉमिक नेट इकोनॉमिक डेली को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो टिड्डी दल के मुकाबले के लिए पाकिस्तान को दर्जनों ड्रोन्स मुफ्त आजमाइश के लिए देने पर तैयार हैं। क्या ज़राअत के मैदान में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकबिल में तावन की कोई मनसूबाबंदी मौजूद है? मुस्तकबिल में ड्रोन्स की तरक्की के क्या रुझानात हैं? आखिरकार 12 सेट भी कम तादाद है। मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में एक खास हिट साबित हो सकते हैं ताकि मकामी लोगों को अंदाजा हो कि पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद ड्रोन टिड्डियों के कंट्रोल में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। न सिर्फ ड्रोन बल्कि उनके ऑपरेटर्स भी पाकिस्तान जा सकते हैं। मुस्तकबिल में जब वबाई मर्ज कंट्रोल में होगा, खास तौर पर चीन में कोविड-19 वैक्सीन की हकीकी तिजारती पैदावार के बाद, मुझे यकीन है कि हमारी सर्विस टीम और ड्रोन ऑपरेटर्स के नाम पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद की फहरिस्त में शामिल होंगे। हम कुछ इस्तेमाल शुदा हवाई जहाज़ों को आम लोगों के लिए मार्केट में लाएंगे जो उन्हें मुफ्त इस्तेमाल करेंगे। ये तस्वुर बिल्कुल शेयर्ड बाइसिकल्स जैसा है। हमारे ख्याल में ये मुस्तकबिल का ट्रेंड है। बिल्कुल, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो DJI कंपनी के जो एक ड्रोन है उसकी जो लागत है वो पाकिस्तान में उस लागत से एक आम बंदा अच्छी सी अच्छी गाड़ी खरीद सकता है। किसानों के बस की बात नहीं है कि वो इसको अफोर्ड भी कर सकें और फिर इसको ऑपरेट भी कर सकें सक्सेसफुली। उनमें एक बाकायदा ड्रोन्स पे एक ट्रेनिंग कायम करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए, तब जाकर ये पूरा जब इकोसिस्टम हमारा बनेगा तब जाकर ये हम फुल जो है पोटेंशियल के साथ इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और इस तरह से जो है वो कॉस्ट भी उसकी जो है रिड्यूस कम हो होगी। सकेगी। बिल्कुल। नाजरीन, अब हम देखते हैं CPAC मेड। मेरे ख्याल में ऑनलाइन तरीका एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाएगा। मैं खुद मीडिया में काम करती हूँ। इससे पहले भी ज्यादा इवेंट बराह रास्त होते थे, लेकिन इस साल ये आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन सरगर्मियों में मुंतकिल हो गए हैं। मुझे याद है कि सार्स क्यूबा के दौरान सभी क्लासें टीवी पर होती थी, जो ऑनलाइन क्लासों की निस्बत कहीं ज्यादा गैर मयारी थी। अगर वबाई सूरत हाल जैसे खास हालात न होते तो मेरा अंदाजा है कि ऑनलाइन कोर्सेज इतनी तेजी से तरक्की न करते। आपको बार बार क्लासरूम बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरी ऐप बदलना होगी। मिसाल के तौर पर पहले कुछ लेक्चर दूसरे शहरों या दूसरे स्कूलों में होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन की वजह से आप घर में भी इन वसाइल से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मेरे ऑनलाइन इंटरव्यू हुए हैं। आमने सामने के मुकाबले में मुझे कम घबराहट और शायद कुछ ज्यादा एतमाद महसूस होता है। हमारी तमाम तर हफ्तावार मुलाकातें रिमोट होती हैं। इस तरह काम के बचे हुए औकात से मेरे ख्याल में काम की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। ऑनलाइन नुमाइशें देखना, खरीदारी, इंटरव्यू, पढ़ाई, कॉन्फ्रेंसें वगैरह आलमी वबा से मुतासर होने के बाद बहुत सारी पैदावार और तर्ज जिंदगी ऑफलाइन से ऑनलाइन में तब्दील हो गई है। यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी तिब्बी तावन खिदमात की सनत भी।
如果说按往年的这个时候哈，我们 अगर हम ये कहें कि पिछले साल ये वक्त तालीमी सरगर्मियों का सीजन था तो हमारे अमले का एक बड़ा गिरोह पहले ही बैरून मुल्क मुकीम है ताकि बैरून मुल्क कामयाबी के साथ तालीम हासिल की जा सके। वबा के दौरान कंपनी की हिकमत अमली को एडजस्ट किया गया। हमने ऑनलाइन कारोबार में तोसी की और फिर कुछ ऑफलाइन तबादले और बातचीत या तालीमी अशातों को ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू वबा की रोकथाम और इसके कंट्रोल के बारे में है। बहुत सारे माहिरीन तजुर्बात शेयर कर रहे हैं, तशखीस और इलाज के तरीके शेयर कर रहे हैं, कुछ मुश्किल और पेचीदा बीमारियों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं और कुछ महकमों के इंतजाम और इन शोबों की मुश्तरका तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं। 我们会有我们自己的这个移动端。 राब्ता कायम करने के लिए हमारे पास अपनी अपनी मोबाइल ऐप के साथ साथ वीचैट भी है। आपके दरवाजे पर रिपोर्ट की तशरीह और वजाहत फराहम करते हैं। हमारे पास ग्राहकों से राब्ता कायम करने के कई तरीके हैं। iKong ने IBM और वॉटसन के साथ स्ट्रैटेजिक ताउन का भी ऐलान किया। मुस्तकबिल में हम सारिफीन को ज्यादा दुरुस्त और तेज तर तशखीस और इलाज फराहम करने के लिए AI अवामिल को मजबूत करेंगे। रिमोट और ऑनलाइन तरीकों के इस्तेमाल से वक्त और मजदूरी की लागत की बचत होती है, तबादलों और सीखने की इस्तेदाद में बेहतरी आती है और कारोबारी इदारों के लिए ये तब्दीली का एक अच्छा मौका है। 我们需要办个签证，然后坐飞机，然后 माजी में हमें वीजा के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती थी और इसके बाद दूसरे शहर जाना पड़ता था। वक्त या मजदूरी की लागत निस्बतन ज्यादा थी। अब रिमोट के जरिए हम फासला कम कर सकते हैं और काम को ज्यादा मौसर अंदाज में संभाल सकते हैं। अपने इंटरप्राइज के लिए हम माहिरीन या डॉक्टरों को ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में भेजते थे ताकि वो ज्यादा सीख सकें, लेकिन वबाई मर्ज के बाद हम अपने कारोबार को वुसअत दे सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। मसलन हम पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक का मोड कॉपी कर सकते हैं, मुस्तहकम तबादलों, मुश्तरका तौर पर अस्पतालों की तामीर और तरबियती प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड ने रवायती अद्वियात की तशहीर को भी फरोग दिया है। 像中医这边说实话，我们讲 चीन रवायती चीनी तिब्बी वसाइल से माला माल है, लेकिन बैनुल-अक़वामी फरोग में निस्बतन सुस्त है, चूँकि इसमें बैनुल-अक़वामी मंडी में मुत्तफ़िक़ा रवायती चीनी तिब का मयार नहीं है और रवायती चीनी तिब बुनियादी तौर पर चीनी फ़लसफ़े से मुतासिर है। बहुत सी तहरीरों के मानी गहरे होते हैं और गैर मुल्की नहीं समझ सकते। दर हकीकत जनूबी कोरिया चीनी तिब को तस्लीम करता है। वो न सिर्फ चीनी दवाओं का मवाद बरामद करते हैं बल्कि चीनी दवाओं का अर्क भी निकालते हैं। इसके अलावा चीनी तैयार शुदा दवाएं भी मौजूद हैं। 我觉得中国也可以像 दर हकीकत मैं समझती हूँ कि चीन जनूबी कोरिया से भी सीख सकता है। चीनी तिब के कल्चर को मजीद फरोग दे सकते हैं। मेरे ख्याल में हम आलमी तिब और तरक्की में चीनी तिब के कल्चर और चीनी तिब के तस्वुर के बारे में जनूबी कोरिया के साथ तबादला ख्याल कर सकते हैं या हम इनसे सीख सकते हैं। 从我们企业本身来讲的话， चीनी तिब के फरोग में मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बहुत सारे मेडिकल स्कूलों में चीनी तिब के महकमे मौजूद हैं। तहकीक व तरक्की और टेक्नोलॉजी के नुक्ता नज़र से हम दूसरे फरीक को तकनीकी मदद फराहम कर सकते हैं और कुछ अद्वियात को मुश्तरका तौर पर तैयार करने के लिए मकामी वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मुस्तकबिल में कुछ वसाइल का इंतजाम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसी तरह की सरमायाकारी के बारे में कुछ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। अच्छी माली इमदाद से चलने वाली चीनी तिब्बी कंपनियों को इकट्ठा करें और फिर पाकिस्तान की कुछ मकामी कंपनियों के साथ मिलाएं। अपनी कंपनियां पाकिस्तान में मुतारिफ करवाएं। और टेली मेडिसिन जो है वो डेफिनेटली ये जो कोविड-19 है इसकी वबा के बाद से तमाम ममालिक में इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसमें पाकिस्तान में भी जो है वो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। चीनी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म हम देखा जिसमें चाइना के हज़ारों की तादाद से डॉक्टर्स ने अपनी खिदमात उधर अंजाम दी जो लोग उनकी खिदमात हासिल करना चाहते लेना चाहते थे। या कि जिन लोगों को इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है या सिर्फ इनिशियल स्टेज पे है जो कोई हेल्प लेना चाहें तो वो हमें इन हेल्पलाइंस पे कॉल करके हमसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आइंदा आने वाले दिनों में भी काफ़ी मुफीद रहेगी। नाज़रीन, अब हम देखते हैं CPEC पायनियर। इस साल के आगाज से कोविड-19 ने कमोबेश हर एक का तर्ज जिंदगी तब्दील किया है और टेक्नोलॉजी की सनत के लिए नए चैलेंजेस और मौके लाए हैं। 对客人来说可能就是比较方便。 कम्युनिटी के अंदर बगैर ड्राइवर डिलीवरी कोरियर के प्रेशर में कुछ कमी करेगी और वबा के दौरान समाजी राब्ते की शर्मिंदगी को भी कम करेगी, जैसे हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक मसनूआत की खरीदारी में ख़वातीन की ज़ाती राजदारी का तहफ़्फ़ुज़। 吃火锅的时候，जब हम हॉट पॉट खाएंगे तो रोबोट हमें पकवान पेश करेंगे।
बीजिंग में एक हाई दी लॉ रोबोट रेस्टोरेंट है जहां खाना खाने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा और मेरे तखय्युल को भी तहरीक मिली। 还是得有先完成新基建的一个基础吧。 नया बुनियादी ढांचा पहले आता है और बगैर ड्राइवर टेक्नोलॉजी उसके बाद। हमारी कंपनी स्मार्ट पार्किंग में मसरूफ है, जिसके लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए तैयारी का अमल दरकार है। 可以看到新基建里面有很多技术。 नए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो खुदकार ड्राइविंग से ताल्लुक रखती हैं, जैसे 5G, बिग डेटा और AI स्मार्ट शहर, जो खुदकार ड्राइविंग के लिए बहुत ज्यादा मददगार हैं। आरामदेह माहौल और स्मार्ट गाड़ियों का इम्तजाज वाकई स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन तश्कील दे सकता है। चीन की खुदकार ड्राइविंग कंपनी Pony.ai के बीजिंग R&D सेंटर के सरबराह ली हेंजू ने इकोनॉमिक डेली चाइना इकोनॉमिक नेट के रिपोर्टर को चीन की खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में बताया। 因为自动驾驶的发展， चीन में खुदकार ड्राइविंग की तरक्की दरअसल अभी निस्बतन इब्तदाई मरहले में है। खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का आगाज सबसे पहले आसान सड़कों या एक महदूद पैमाने के साथ होना चाहिए और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाए तो इसे बड़े और ज्यादा पेचीदा इलाकों तक फैलाया जाए। हमने 2016 के आगाज में बुनियाद रखी थी और हालिया बरसों में तेजी से तरक्की हुई है। इस वक्त हमारे पास 100 कारों का बेड़ा है और हमने 2.5 लाख किलोमीटर तवील खुदकार ड्राइविंग टेस्ट मुकम्मल कर लिया है। चीन की सबसे कीमती खुदकार ड्राइविंग कंपनी की हैसियत से हमारी कंपनी की मौजूदा मालियत 3 अरब अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंची है। ली हेंजू ने इकोनॉमिक डेली चाइना इकोनॉमिक नेट के रिपोर्टर को बताया कि 3 साल से ज्यादा अरसे के आदादोशुमार जमा करने और तकनीकी जांच पड़ताल के बाद इस वक्त वो तिजारतकारी की तरफ गामजन हैं। 从一个技术原型验证到一个小规模的量产。 हम तकनीकी प्रोटोटाइप से छोटे पैमाने की बड़े पैमाने पर पैदावार की तरफ जा रहे हैं। हम न सिर्फ खुद कार गाड़ियों की तादाद में इजाफा करेंगे बल्कि उनका पैदावारी नमूना भी मयारी और मुस्तहकम पैदावारी मॉडल बन जाएगा। ये मुस्तकबिल की तिजारत के लिए तैयार है। मुसाफिर गाड़ियों की फील्ड में Pony.ai कंपनी की तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबे के मुकाबले में मेजबान की बगैर ड्राइवर डिलीवरी गाड़ियों का उबरना ज्यादा बरवक्त मालूम होता है। 疫情起来之后，大家对无接触配送的需求就上来了。 वबाई मर्ज के दौरान लोगों का कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी का मुतालबा बढ़ गया है। हमने सब्जियों के कारोबार के लिए बीजिंग के शुनई जिले का बाज़ाब्ता पायलट एरिया के तौर पर इंतखाब किया। बगैर ड्राइवर ड्राइविंग टेक्नोलॉजी टर्मिनल के बगैर खुद कार तरसील के लिए ज्यादा मौजू है। इसकी एक वजह यह है कि हमारी ऑपरेशन की रफ्तार कम होगी। दूसरी वजह यह है कि हम बगैर मोटर वाली गाड़ियां तैयार करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा हिफाजत का पहलू ज्यादा पेश नजर होगा। 正常的骑手配套是 आमतौर पर हमारे सवार रोजाना 8 से 10 ऑर्डर डिलीवर करते हैं। वबा के दौरान डिलीवरी की तादाद मामूल से दुगनी से भी ज्यादा 25 या 26 ऑर्डर तक पहुंच गई है। बहुत दबाव की वजह से हमारे हेडक्वार्टर ने हमें बगैर पायलट 2 गाड़ियों से लेस किया है। सवार को डिलीवरी मुकम्मल करने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। अब बगैर ड्राइवर गाड़ियां सवार पर दबाव को 1/2 तक कम कर देंगी। 5 से 7 किलोमीटर लंबा फासला या भारी ऑर्डर बुनियादी तौर पर बगैर पायलट गाड़ियों के जरिए मुकम्मल किए जाते हैं और बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंट तरसील के साथ बर वक्त तरसील का तनासुब 98% तक हो सकता है। जब सामान पहुंचेगा सिस्टम ग्राहक को फोन करेगा और फिर ग्राहक ऑर्डर नंबर चेक करेगा और खाने के साथ लॉकर खोलने के लिए बटन पर क्लिक करेगा, जो कि बहुत आसान और मुअस्सर है। हमारी जो डिलीवरी जो सर्विसेज हैं चाइना में, जैसे कि जेडी ने अपनी ड्राइवरलेस कार का पार्सल की डिलीवरी के लिए अपनी गाड़ियां बना ली हैं। तो उसके साथ साथ मैं इसमें ये भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है फौजी फाउंडेशन, वो इस वक्त दे आर लुकिंग फॉर कोऑपरेशन विद द चाइनीज गवर्नमेंट, लाइक द चाइनीज कार ब्रांड्स लाइक BYD और उसके अलावा जिंदोंग और उन कंपनी के साथ जो ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, ताकि कोई एक ऐसी जॉइंट वेंचर पाकिस्तान में लाई जा सके जिससे हमारा जो है जापानीज टेक्नोलॉजी और जापानीज कार्स के ऊपर जो है सिर्फ उन्हीं के ऊपर इन्हिसार होना
نہ رہے، بلکہ ہم جو ہے اور اپنی مارکیٹ کو تھوڑا ایکسپینڈ کر سکیں، بلکہ لوکلائز بھی کر سکیں، کیونکہ زیادہ تر پاکستان کی جو آٹوموٹیو مارکیٹ ہے، آٹوموبائل مارکیٹ، وہ ہے ڈومیننٹ بائی دا جیپنیز۔ ناظرین، پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب اپنی میزبان نسرین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔